Today we are going to start with chapter number 4, financial planning. Okay, algebra of standard 10. You know very well. Now, in financial planning, the first topic we are going to cover is or study is goods and services tax. That means it is GST. Please understand what is the full form of GST. It is goods and services tax. Now, this goods and service tax, earlier there were different taxes which were levied for different work, like consumer items taxes were different, for services taxes were different, for entertainment taxes were different, custom duty taxes were different. Now, when the government introduced GST, that is goods and service tax, all these different type of taxes were incorporated. They were subsumed, means incorporated in a single tax. So we today in India have a single tax system, and that is GST. Okay. Now GST range, it was applied to all over complete India, including Union Territory, from 1st July 2017. The range of this tax varies from different goods and services. In entertainment, the service tax GST is more. For essential commodities, service tax is very less. For example, if you go for watching movie, you may have to pay about 18 to 28% tax. But if you go and or buy AC or a refrigerator, or maybe the taxes, because they are luxury items, car, luxury items, the taxes are, GST is very high. But for gas cylinder, it's an item which is essential commodity. Medicines, essential commodities. So GST are very less. Maybe it may be 0 or less, or maybe 5, maximum 5 or 6 for essential commodities. Okay? So the range of GST ranges varies from 0 to 28%, depending upon which category that service or a good belongs to. Now, some of the terms of GST we are going to study today here. CGST means Central Government Service Tax, or Central Government Goods and Service Tax here. Okay. Second is State Government Goods and Service Tax. Now, please understand, GST includes both this. For example, if I consider GST is 10%, then half of it, means 5% of the GST belongs to the state government, and half of it, 5%, goes to central government. So remember carefully, whenever I say GST, half, whatever the amount, whatever the rate, whatever the percentage of GST it is, suppose it is 10%, 15%, 28%, 18%, 20% or 5%, exactly half of it. For example, if we get 5%, 2.5 will go to the state government, remaining 2.5 will go to the central government. Same way, if I take 18%, 9% will go to the state government, exactly half, and the remaining 9% will go to the central government. So, equal division, okay? UTGST, Union Territory Goods and Service Tax. Now, central government tax is fixed, whether it is state government or you go for Union Territory. But what about Union Territory? Suppose I am selling a good, I am a dealer, not in a state but in a Union Territory. Then does the GST apply similarly as is applied in the state? Yes. Whatever I sell in a Union Territory or purchase in a Union Territory, and GST is 18% I'm telling you, then half of it, 9% will go to the central government, and the remaining half, 9%, will come to the Union Territory. Okay, so it is just similar to the state government. So there is no difference in the GST levied in Union Territory
or GST level in the states. GSTIN, this means Goods and Service Tax Identification Number. Now, like we all, those who are earning say above 5 lakhs annually, I'm giving you a rough idea because this range keeps on changing. For ladies, I think it is no income tax for 5 lakhs, and for gents who are earning 5 lakhs and above do have to pay income tax. So, those who pay income tax, who come in that range of above 5 lakh per year, then they all have to get a PAN number. PAN is Permanent Account Number, PAN, for income tax. Okay. Similarly, a dealer who is paying GST should have his own GST number. GST number, that is Goods and Service Tax Identification Number. Like PAN is identification number of my PAN card is needed various places where you go for identification. Okay, same way GSTIN is a Goods and Service Tax Identification Number of a dealer, not of an individual. Income tax is for individual. GSTIN is a Goods and Service Tax Identification Number for a dealer of a particular good. Now, who should have this? That's very important. I told you, in income tax, if you are above 5 lakh, your income is above 5 lakh annually, you need to have a PAN card. And if you're a very honest citizen and regularly paying tax. If your income is less than 5 lakh, then there is no need of PAN card, remember. Aadhaar card will be sufficient. But for GST, those dealers whose annual turnover is 20 lakhs, is the criteria, 20 lakhs and above, in the previous year, then they should have. I will explain you this. Suppose if I start a business today, now I am a dealer today, I start my dealership today, from today onwards. Now I don't have any previous year turnover. It is zero. So I don't need to have a GST. But after 1 year, that means this year is 2024, maybe in 2025, or 1st July 2024, whatever deal I have done from 1st January till today, till July, 1st July, I will have to pay tax. Now, they will see GST paid by me. If my GST till 1st July 2024 is less than 20 lakh, I don't have to have a GSTIN. Then for next year I go. 24-25 I see. Maybe on 1st or 31st, on 31st of July 2025, they see if my turnover is about 20 lakhs for the year, for one financial year. The financial year, you know very well, start from 1st April to from April to March, 31st March next year. So if that my GST is about 20 lakhs, that is my period starting from let's say 1st April 2024 now. Of course, if I start my business today, dealership today, by 31st of March, I will not have 20 lakhs turnover, of course, provided I'm a beginner. But next year, I may have. So if I'm a good businessman, I may raise my business to earn 20 lakhs, my turnover. Now, from 1st April 2024 to 31st March 2025, that financial year, if my GST exceeds 20 lakhs, then next year I will have to, that means after, from 1st April 2025, I will need a GST. I will have, because when I pay GST, I will have to pay with my GST, means I have to apply for GST number, there is a form, I'll get a GST number, and then I have to pay the tax, okay? Otherwise, they will give you a huge penalty, remember. And it's completely computerized. No one is going to come at your doorstep
डोर स्टेप एंड से सर जी ये आपने पेमेंट नहीं किया है, आपने टैक्स नहीं दिया है, आपको पेमेंट करना है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। अगर आपने डिले कर दिया आपके ऊपर ह्यूज पेनल्टी लग जाती है और देयर इज प्रॉब्लम हो जाता है। सो जीएसटी वाले डीलर्स को बहुत संभालना पड़ता है। रेगुलरली हर 3 महीने के बाद उनको जीएसटी देना पड़ता है। चलो जीएसटीएन, अच्छा ये जो आपका जीएसटीएन मतलब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये जो नंबर है वो 15 अल्फा न्यूमेरिकल है। आप जानते हो पैन अपने डैडी या मम्मी का देखो, पैन नंबर जो है वो 10 अल्फा न्यूमेरिकल है। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब अल्फाबेट्स एंड नंबर्स मिक्स्ड, whereas when you go for GSTIN or GSTN identification number, the goods and service tax identification number, it is 15 alpha numerical and it includes PAN of that particular dealer. मतलब GST पता चलने के बाद उसका इनकम टैक्स उसने क्या किया है वो भी पता चलता है और पैन कार्ड से उसका GSTN भी पता चलता है। मतलब दे आर इंटरकनेक्टेड, रिमेंबर। सो टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है क्या चोरी की है टैक्स की, नहीं चोरी की, ये ईमानदारी से अंदा करता है या नहीं करता, या घुमाता है पैसा, वो सब बातें। दिस फॉर सेम पर्पज ओनली दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स मनी, पीपल शुड नॉट स्टैक मनी एज अ विदाउट पेइंग टैक्स, वी कॉल इट ब्लैक मनी। We want white money, let the money be in the market, in a circulation, and let the government get sufficient taxes so that they can give us, we all Indian citizens, benefits, because whatever tax they collect, they give us amenities from that. Okay, our defense system increases, our dollar market comes down, dollar comes down, so we can export and import. The condition becomes very suitable for finance, for foreign investors. All these things are very, very positive result. So paying tax is always good. Then we have HSN. HSN is harmonize the system of nomenclature. All goods are classified by codes. See, HSN, every good, there are different type of goods, and every good is given a specific code. You have to put that code, come to know, the government come to know, this is the code, okay, then this belongs to so and so goods. Okay, so this is very important, please understand this. Okay, let us start. We start with practice set 4.1. Okay. The question is, Pawan Medical supplies medicine. Pawan Medical is a store which supplies the medicine. On some medicines. Now we know medicines are essential commodities sometimes always. So the GST is not so high. On some medicines the rate of GST is 12%. Then what is the rate of GST and CGST and SGST? It will be half, of course. So, likho. Practice set 4.1. First question. क्या दिया उन्होंने? That the GST is 12%. तो लिखो. The rate of GST is 12%. Now we want what? CGST and SGST. Okay. Now the rate of CGST, therefore, rate of CGST, Central Goods and Service Taxes, half into, or we can take, it is GST divided by 2. So it is 12% of 2, so it is 6%. Therefore, rate of SGST
equal to rate of CGST equal to 6%. This is your answer. Yeah. This is your answer. 6% is both CGST and SGST. I told you central service goods and service tax and state and states goods and service tax are equal. Half of GST. Question number 2, see. On certain article, if the rate of CGST, central goods and service tax is 9%, then what is the SGST? 9% only. And what will be GST? GST will be double of that. So it will be 18%. Chalo. The rate of, उन्होंने कितना दिया है? उन्होंने क्या दिया है? CGST. The rate of CGST. Rate of CGST is 9%. Now, rate of SGST equal to rate of CGST equal to this also is 9%. And rate of GST is 2 times rate of CGST. So it will be 2 into 9%. It will be 18%. Question 3 लेते हैं. Question number 3. उन्हें दिया है Messrs Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin, हर एक टिन का ₹2,800. एक टिन की टैक्सेबल वैल्यू 2,800 है. इसका मतलब है, याद रखो, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब है अभी तक इस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगा है. उसकी जो सेलिंग वैल्यू होगी वो टैक्स लगाने के बाद आएगी. सो बिफोर टैक्स ये है उसकी वैल्यू. ओके, एक टिन की. सो हमें 2 टिन की निकालनी होगी. इफ द रेट ऑफ जीएसटी, अच्छा जीएसटी का रेट कितना दिया है? 28% दिया हुआ है. ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोनों निकालने हैं हमें. तो हमें पहले लिखाना है टैक्सेबल वैल्यू. लिखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ taxable value of 1 tin luster. 1 tin luster ना, 1 tin luster paint is ₹2,800. देखो 2,800 रुपया, 2,800 is the टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन. अभी कितने टिन्स दिए हैं? नंबर ऑफ टिन्स, कितने टिन्स हैं? 2. देयरफॉर व्हाट विल बी टोटल टैक्सेबल वैल्यू? टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन luster paint is equal to 2 into 2,800. This will be ₹5,600. 5,600 rupees is nothing but what you get? luster paint, दोनों टिन के टैक्सेबल वैल्यू. अभी हमें क्या फाइंड करना है? जीएसटी हमें दिया हुआ है, जीएसटी 28%. तो हमें जीएसटी लिखते हैं 28%, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी. रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28%. Therefore, rate of CGST equal to 1/2, half of
rate of GST. So it will 1/2 into 28%. This will be 14%. ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ CGST. Therefore, amount of CGST कितना है भाई? 14% ना, 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. टोटल टैक्सेबल वैल्यू 56 है, 5600 इंटू 5600. तो ये मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करो 56 इंटू 14 कितना आता है देखो. 56 इंटू 14, 14 5 70, 14 6 84, 8 कैरी. 14 5 70 प्लस 8 78. तो ये आता है हाउ मच रुपीज? 7084. This much amount he has to pay as CGST. Now they also ask us to find out SGST. Now therefore, amount of SGST is equal to amount of CGST इक्वल टू सेम अमाउंट. दोनों को 784 ही पे करना है गवर्नमेंट को. CGST अगर 784 पे करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी 784 ही पे करना है. चलो नेक्स्ट करते हैं. जगह है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है. द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट. हम जो रिस्ट वॉच पहनते हैं उसका जो बेल्ट है उसकी वैल्यू है 586 रुपीज. द रेट ऑफ GST ऑन दैट इज 18%. वो बेल्ट के ऊपर GST हमें पे करना पड़ेगा अगर हमने खरीदा तो 18%. तो दे आर गिवन अस टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू का मतलब उसके ऊपर वो मार्केट वैल्यू या हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं है, वो है एक वैल्यू जिसके ऊपर हमें क्या टैक्स लगने वाला है. ओके, उसके बाद वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी. द रेट ऑफ द GST 18%. देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर. जब वो टैक्स उस पर इंक्लूड हो जाएगा तब उसका कॉस्ट क्या होगा. चलो फाइंड करते हैं. फोर्थ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट. क्या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट? वो है 586. What is rate of GST? 18%. Therefore, amount of GST क्या होगा? It will be 18% of taxable value. जो टैक्स 18% है वो किस पे लगेगा? टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा. तो ये 18% मतलब 18/100. टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 586. तो क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट करते हैं, डिवाइड मत करो. 586 इंटू 18 करो, डिवाइड करोगे तो वापस वो तुमको डिवीजन में अदर देन 10 आएगा. और देन अगेन यहाँ तक मल्टीप्लाई करो ऊपर के दो न्यूमरेटर एंड पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट. तो करते हैं हम लोग करते हैं 18 5 18 6 18 5 90 और 18 6 108. सो 8 10 कैरी. ओके, ये आता है 144 प्लस 10 मतलब 18 8 144
and plus 10, so 154. And 18 fives are 90, 90 plus 15, 105. ओके, अब ये डिनोमिनेटर को भूलो मत, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को क्या आता है, ये 10548 अपॉन 100 आता है, भूलो मत। तो ये क्या होगा रुपीस, ये क्या होगा डेसिमल पॉइंट, ये दो जीरो है ना, तो आफ्टर 2 डिजिट्स पुट डेसिमल पॉइंट, सो 105.48। ये हो गया आपका टैक्स जीएसटी। हमें क्या फाइंड करना है, द प्राइस ऑफ द बेल्ट। देयरफॉर द प्राइस ऑफ द बेल्ट विल बी, कितना होगा भाई, ये है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 586, जीएसटी कितनी है 105.8, इसको ऐड करो क्या होगा 0.48, तो एज इट इज होगा, 6 प्लस 5 11, 8 प्लस 1 9, और ये 6, तो ये अमाउंट है 691.48. This will be the amount you have to pay to get that belt. चलो next. Question number 5. Question number 5 तब तक पढ़ो। Read question number 5. When I am teaching, always keep your textbook with you. तो आसान पड़ता है समझने को। Understanding question is very, very important. So let's see question number 5. What they are given us the total value, याद रखो total value with GST, मतलब ये taxable value नहीं है, एक्चुअली ये सेलिंग प्राइस होगा, ओके, ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार। ये टॉय कार की बात कर रहे हैं, बच्चे यूज करते हैं ना छोटे। उसकी कीमत है, द वैल्यू, द प्राइस इज 1770। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन द टॉय कार। फाइंड द टैक्सेबल, हमें यहां टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। टैक्सेबल वैल्यू निकालो, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफ कार भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो, एक बार तुम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली तो उसको माइनस करोगे ये प्राइस से, 1770 माइनस टैक्सेबल वैल्यू, यू गेट जीएसटी वैल्यू अमाउंट, और उसका आधा करो, यू गेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो पहले बात, द फर्स्ट क्राइटेरिया ये क्वेश्चन में है, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी। तो चले निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हमें टैक्सेबल वैल्यू मालूम नहीं है तो हमें उसको ₹X लेना है। ओके, लिखते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय बी, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी ₹X। ये हमने ₹X ले लिया, राइट। अभी इसके ऊपर हमें जीएसटी लगाना है। ओके, हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू X ले लिया। अब इसका सेलिंग प्राइस तो हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस मालूम है, लेकिन इस बेसिस के ऊपर X के ऊपर हमें जीएसटी निकालना है। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस X ऐड करनी है और वो सेलिंग प्राइस इक्वेट करनी है, हमें X मिल जाएगा। धीमे धीमे करते हैं, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। देखो, हमने क्या लिया, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार बी, ऑफ द टॉय कार बी ₹X। अभी हमें इसके ऊपर जीएसटी निकालना है, X के ऊपर। जीएसटी कितना है भाई, रेट ऑफ जीएसटी, सॉरी, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। Therefore,
अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा? इट विल बी 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ये 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू होगा। ओके, ये टैक्सेबल वैल्यू, हमको टैक्सेबल वैल्यू x है, तो हमें इसके ऊपर सॉल्व करना 18/100 इंटू x, तो ये होगा 2 9 ज़ा 50 ज़ा, तो कितना जीएसटी आ गया? 9x/50 रुपीज इज योर जीएसटी। अभी सेलिंग प्राइस क्या होगा? दिस टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, बराबर ना? Therefore, क्या होगा ये? सेलिंग प्राइस ऑफ, या हम लोग उन्होंने कुछ दिया है ना, उन्होंने कार फाइंड कंट्रोल टू द टोटल वैल्यू। अच्छा, उन्होंने ना, सी दे आर नॉट यूज द वर्ड सेलिंग प्राइस, दे हैव यूज द वर्ड टोटल वैल्यू विद जीएसटी। तो हम भी यहां टोटल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। विल यूज द वर्ड टोटल, we use the word total value. Therefore, total value of toy car is taxable value plus GST. तो taxable value कितना है? X, हमने X लिया है। GST कितना है? 9x/50. So this will be your total value. लेकिन टोटल वैल्यू क्या दी है? देखो क्वेश्चन में इट इज 1750, तो इक्वेट करो एज पर द गिवन कंडीशन। Total value of toy car is 1770. Therefore, x plus 9x/50 equal to 1770. Multiplying both sides by 50, क्या होगा ये? Therefore this will be 50x plus 9x equal to 1770 into 50. ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं बिकॉज बाद में ये लेफ्ट हैंड से ऐड करने के बाद वापस डिवाइड करना है, तो फैक्टर्स अननेसेसरी बढ़ जाएंगे, तो मैं ऐसे ही रख रहा हूं उसको, मैं एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। Therefore this becomes 59x equal to 1770 into 50. Therefore देखो x इक्वल टू क्या होगा? 1770 इंटू 50/59, और 59 के टेबल में 177 आता है, देखेंगे। देखो ये 9 का टेबल जो है ना, इसमें लास्ट ये 7 आता है, 9 3 ज़ा, तो देखो कितना आएगा? 3 9 ज़ा 27, 2 5 3 ज़ा 15, 16 17 आता है 177, सो 1 ज़ा, और ये आपका है 30 ज़ा। ओके, देयरफॉर x क्या होगा? 5 3 ज़ा 1500 रुपीज, 1500। अभी हमें फाइंड करना है जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, therefore taxable value of toy car is rupees 1500. Therefore, amount of GST paid क्या होगा? टोटल वैल्यू
माइनस टैक्सेबल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या है 1770 माइनस टैक्सेबल वैल्यू क्या है 1500, तो रुपीज 270 इज योर जीएसटी। अब उन्होंने क्या पूछा अमेरिका से, सेंट्रल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। CGST equal to SGST equal to half into GST, तो 1/2 into 270 कितना आता है ₹135। So CGST equal to SGST is फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना है। Therefore, the taxable value of toy car is कितना है 15 is rupees 1500 and CGST also CGST equal to SGST equal to rupees 135। जो अभी हमने फाइंड किया उसको प्रॉपरली लिख दो सर। वी गो टू क्वेश्चन नंबर नाउ 6। हमें 6 क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन नंबर 6। A tip-top electronics, okay, a tip-top electronics supplied an AC of 1.5 ton। 1.5 टन का एसी उसने सप्लाई किया है टू अ कंपनी को सप्लाई किया। द कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड, क्या है प्राइस, वो कॉस्ट ऑफ एसी कितना है, ये टोटल प्राइस है, ये विद जीएसटी है, मतलब ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली सेलिंग प्राइस है। द कॉस्ट ऑफ द AC supplied is 51,200 with GST. The rate of CGST, उन्होंने very interesting, GST is उन्होंने दिया है, लेकिन CST उन्होंने दिया है, CGST is 14%। देखो CGST सेंट्रल सर्विस टैक्स 14% है, तो स्टेट सर्विस टैक्स भी 14% होगा, तो GST कितना होगा, डबल ऑफ दैट। 14 का डबल कितना होता है 28%। ओके, चलो फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप-टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्हें क्या क्या दिया है देखो, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी में फाइंड करना है, तो सीजीएसटी है, जो वैल्यू है 14% वही एसजीएसटी होगा। रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, डबल ऑफ दैट, 14 का डबल 28 हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी और अमाउंट ऑफ सीएसटी निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या दिया है, लेट द टैक्सेबल, अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो उन्होंने टोटल, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं मालूम है, तो जो हमें मालूम नहीं उसको हम एक्स लेते हैं। ओके चलो solution 6, let the taxable value of
एयर कंडीशन AC, B रुपी X, चलो B रुपी X, तो हमने एज्यूम कर लिया। ओके, अब उन्होंने वेरी इंटरेस्टिंगली CGST दिया है, तो GST क्या होगा? डबल ऑफ दैट, तो लिख लेते हैं। ओके, उन्होंने हाँ, रेट ऑफ GST विल बी 2 into रेट ऑफ CGST। उन्होंने CGST दिया है ना अपने को, देखो, हाँ उन्होंने दिया है CGST इज 14%, सो यह आएगा आपका 2 into 14% विल बी 28%। 28% क्या हो गया अपना? 28% हो गया अपना GST, रेट का GST। अभी हमें GST निकालना है। GST किसके ऊपर? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या लिया है? X। तो X के ऊपर GST कितना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे निकालो। Therefore GST will be 28% of taxable value। तो यह आएगा आपका 28/100 टैक्सेबल वैल्यू है X। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? डिवाइड बाय 2 किया था, तो यहां भी डिवाइड बाय 2 करके देखो, अच्छा ज्यादा भी हो सकता है, डिवाइड बाय 4 करके देखो। 4 7s are 28, 4 25, तो ये वैल्यू क्या आती है आपको? ₹7x/25, ये मिल जाती है आपको। दिस इज योर GST अमाउंट। ओके, therefore कॉस्ट क्या होगा? therefore कॉस्ट ऑफ AC इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। तो टैक्सेबल वैल्यू X है, GST 7x/25 है, तो ये हो गया उसकी कॉस्ट। बट कॉस्ट कितना दिया है? 51,200, तो इक्वेट करो। बट एज पर गिवन कंडीशन कॉस्ट ऑफ AC इक्वल टू कितना है भैया? 51,200, सो इक्वेट करो। Therefore X plus 7x/25 is 51200। जैसे हमने पहले किया था वैसे यहां भी जब हम 25 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई भाई मत करो जितना हो सके, ओके, अवॉइड मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना होता है आपका? 25x प्लस 17x इक्वल टू 51200 इंटू 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि वो छोटा होने वाला नंबर डिवाइड करने के बाद देखो ये ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? दिस विल बी 32x इक्वल टू 512 इंटू 100 इंटू 25। अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो डिवीजन। ये जो 512 है ना, ये डिविजिबल बाय 32 होता है, तो ये क्या होता है? देखो कितना होगा, देखो x इक्वल टू 512 इंटू 100 इंटू 25 अपॉन 32। चलो स्टार्ट करते हैं। 4 8s, ओके, 4 1s 4, 5 में से 4 चला गया, 1 कैरी, और ये 1 या है तो 11 हमने 4 से लिया था, 4 2s 8, 11 में से 8 गया 3, ये 2 आ गया 32, सो 4 8s 32। ओके, अब 8 128 डिवाइड बाय 8 होता है, यस, 8 1s 8, ये आएगा 8 1s 8, 4 कैरी, 8 6s 48। देयरफॉर x कितना होता है?
1600 into 25। अब ये 1600 कितना होता है? 1620, 25 4 कितना? 100, 100 into 4, 400। तो देखो 16 into 25 into 100, तो ये क्या होगा? ये 400 और ये 2 0 लगा दो यहाँ, तो यह टोटल होगा 40,000। तो ये हो गया आपकी टैक्सेबल अमाउंट। therefore taxable amount, taxable value, taxable value of AC is equal to rupees 40,000। अभी हमें फाइंड करना है जीएसटी और उसके बाद हमें फाइंड करना होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमें इसकी जीएसटी कितना देखो, हम वी नो द कॉस्ट ऑफ एसी। कॉस्ट ऑफ एसी कितना है? कॉस्ट ऑफ एसी इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तुम यहां भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर दैट 40,000 गेट द आंसर। चलो हम लोग वही करते हैं ना, क्यों हम लोग कहेंगे देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी will be 7x upon 25, 7 upon 25 into 40,000। तो 40 इंटू मैं अलग करता हूं 400 इंटू 100। 40,000 को मैं स्प्लिट करता हूं 400 इंटू 100। तो ये क्या होगा आपका 25 1 25, 25 4 100। तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 4 16 और 16 इंटू 7। आपका जीएसटी क्या होगा देखो, नहीं तो चलो 7 4 28, 2800 इंटू 4, 4 8 32, 4 2 8, 9 10 11। सो इट इज आपका जीएसटी है 11,200। तो therefore CGST equal to SGST equal to half into GST। तो इसका आधा होगा, तो 11200 का। सो 2 5 10, 2 6 12। तो दोनों वैल्यू जो है जीएसटी और एसजीएसटी कितने होंगे? 5,600 ईच। तो यही फाइनल आंसर आपको लिखना है जो उन्होंने पूछा है। 1 by 1 जो उन्होंने पूछा है वो लिख लो। अभी तुम लोग समझ गए हो, अभी फाइनल आंसर कंपलसरी है, हमें लिखना है, तुम लोग हैबिट करनी होगी। चलो लिखो फटाफट। ये सब हमने जो फाइंड किए है ना, उन्होंने क्या बोला अपने को? फाइंड क्या दिया है? रेट ऑफ जीएसटी। तो ये रेट ऑफ जीएसटी हमने फाइंड किया है। देखो पहले रेट ऑफ जीएसटी हमने फाइंड किया है। बाद में उन्होंने कहा है रेट ऑफ एसजीएसटी। अच्छा एसजीएसटी वो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होता है, तो 14%। एक रेट है, लिखो रेट ऑफ, यहां लिखना होना चाहिए था, यहां लिख दो रेट ऑफ सीएसडी जीएसटी एंड सीएस। ये लिखा है तो समझ में आएगा वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में, बिफोर दैट क्वेश्चन में बोला है वैसे एक बार लिख दो 1 by 1। ऐसे आंसर रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 14%। और मैं आंसर टू रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू हमने हाईलाइट किया है तो 28%। बाद में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी ये हमने हाईलाइट किया है ₹40,000। बाद में टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ये अभी हमने फाइंड किया, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी 11,200। और लास्ट के 2 5th and 6th अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी वो जा लिख लो। और अभी फाइनल आंसर लिखते जाना, मैं से बोलूंगा फाइनल आंसर लिखने का।
अभी ये मेरे ख्याल से इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, तो हाफ 50% ऑफ द पोर्शन तो अपना हो गया है। और हम जानते हैं फाइनेंस लिखना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद 7 क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द क्वेश्चन। प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन। ये प्रसाद नाम का आदमी है, उसने वॉशिंग मशीन परचेज किया है। तो देखते क्या करते हैं, हमें कैलकुलेट करने को बोला है। प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। The discount of 5% was given on the printed price, mark price के ऊपर। वापस पढ़ते हैं। The discount of 5% was given on printed price of rupees 40,000। मतलब printed price 40,000 दिया हुआ है, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट है। हाँ, ध्यान रखो। Find the purchase price of the washing machine for the Prasad. Also find the GST and CGST in this thing. Okay. देखो, GST का वैल्यू उन्होंने दिया है, GST चार्जेस 28%। इसको कैसे कैलकुलेट करना है तुम्हें समझना होगा। ये प्रिंटेड प्राइस है। प्रिंटेड प्राइस का मतलब हम मार्केट में जाते हैं तो एक देखते हैं प्राइस, उसके ऊपर ऐसा छापा होता है, या वो डीलर जो है ना उसके ऊपर एक टैग लगाता है ऐसे, और उसके ऊपर लिखता है 1000 रुपीज। तो हम जाके वो उनसे लिखा है इसलिए हम परचेस नहीं करते, हम उसको पूछते हैं कि भाई भाव तोल करो, कितना कम करोगे। तो उसने समझो हम 5% कम कर देते हैं। चलो, उसने बोल दिया आप पेमेंट कर रहे हो डाउन पेमेंट, तो हम लोग 5% आपको कम कर देते हैं। 5% कितना हो गया, 1001 रुपीज, 50 रुपीज आपका कम हो गया। तो हम पे कितना करेंगे, 950 नहीं करेंगे। तो आप लोग बोलोगे 950 सर, नहीं, ये उसका टैक्सेबल वैल्यू हुआ। समझे ना, 1000 में ये प्रिंटेड प्राइस है, उसके ऊपर उसने आपको 5% डिस्काउंट दिया। तो वो 5% डिस्काउंट देने के बाद जो सब्ट्रैक्ट करोगे 5% फ्रॉम दैट 1000 में 50 रुपीज आता है। 5% ऑफ 1000 इज रुपीज 50। तो साहजिक है, नेचुरल है। आप बोलोगे 1000 माइनस डिस्काउंट करो 50 रुपीज, तो 950 मेरा प्राइस हुआ। नहीं, ये प्राइस नहीं, ये है टैक्सेबल वैल्यू। वो डीलर को अभी जीएसटी इसके ऊपर लगाना है, तो जीएसटी लगेगा किसके ऊपर, 950 के ऊपर। और जो जीएसटी वो 950 में ऐड होगा, वो ऐड होने के बाद मतलब टैक्सेबल वैल्यू 950 प्लस जीएसटी, जो भी वैल्यू अमाउंट आएगा वो होगा आपका परचेज प्राइस। ओके, तो यहां भी ऐसे करना है। उन्होंने क्या दिया है, प्रिंटेड प्राइस अपने को दिया है 40,000, डिस्काउंट है 5%। तो 5% डिस्काउंट अगर हम लोग 40,000 में करें तो कितना होता है, वो पहले हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट फाइंड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस क्या मशीन है ना, उन्होंने क्या फाइंड किया, हाँ वॉशिंग मशीन। प्रिंटेड प्राइस ऑन वॉशिंग मशीन कितना है, रुपीज 40,000। ये 40,000 उसने लेबल लगाया है, 40,000 आपको पढ़ना है। हमें वी आर नॉट गोइंग टू पे 40,000। हम बोले बार्गेन करने के बाद 5% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। चलो डिस्काउंट फाइंड करो। डिस्काउंट इज 5% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस के ऊपर हमें 5% डिस्काउंट मिल रहा है। सो 5/100 इंटू 40,000, तो भाई 0 0 0 0 गया, और 5 4 20, तो अपने को 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। सो व्हाट इज द डिस्काउंट? What is the discount? 2,000 rupees. Okay.
अब डिस्काउंट होने के बाद हमें इसका फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सो ये टैक्सेबल वैल्यू, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करते हैं। वो सेलिंग प्राइस में लिखते नहीं, टैक्सेबल लिखते हैं। हमने पहले क्वेश्चन किया है, वैसे समझने को आसान पड़ता है। Therefore, taxable value of machine, अभी ये समझ जाओ, मशीन मतलब वॉशिंग मशीन, is printed price minus discount। तो प्रिंटेड प्राइस कितना है भाई? 40,000 माइनस 2,000, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ? 38,000। 38,000 इज योर टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी कितना है? 28%। तो अभी आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है भाई? 28%। सो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ जीएसटी? Amount of GST is 28% of taxable value। जो हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाली है ना ये इसके ऊपर, सो 28/100 टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 38,000। तो 30 2 0 का कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 38 इंटू 28, 8 8 64, 8 3 24 plus 6 30, 2 8 16, 2 3 6 plus 1 7, तो यह आता है 1064। और ये भूलो मत ये जीरो, तो ये होगा रुपीज 10,006। ये जीरो यहां लगा दो, ओके। तो ये होगा जीएसटी, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी है। अभी हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस नहीं, क्या फाइंड करना है देखिए। उन्होंने दिया है फाइंड द परचेज प्राइस। हाँ बरोबर है। तो परचेस प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन फाइंड करना पड़ेगा फॉर प्रसाद। प्रसाद ने कितना पैसा दिया। फाइंड अमाउंट ऑफ, अच्छा सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, या हम लोग जीएसटी निकालते हैं। ये जीएसटी निकाल दो, सीजीएसटी निकालो। सीजीएसटी इक्वल टू एचजीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ GST equal to 1/2 into 10640. Therefore, CGST equal to SGST equal to half of this कितना होता है? 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 5320 rupees 5320 each। CGST 5320, SGST 5320। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें प्रसाद का कॉस्ट प्राइस। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन फॉर प्रसाद, CP ऑफ वॉशिंग मशीन विल बी टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना है इसका? 38,000 प्लस जीएसटी कितना भरा उसने? 10,640। सो उसका प्राइस कितना हुआ? इट विल बी 40,640 सीपी। यह है उसको सीपी। ये उसका प्राइस है।
38 प्लस 10 इज 48। थोड़ा गलत हुआ मेरा, मैं सीधा 30 और 10 40 लिया, 38 है तो 38 प्लस 10 इज 48 और 640। अब आपको मालूम है वैसे लिखे जाऊं फाइनल आंसर। उन्होंने क्या पूछा है आंसर, परचेस प्राइस ना क्या, व्हाट, फाइंड द अमाउंट, फाइंड द परचेस प्राइस। देयरफॉर purchase price of washing machine for Mr. Prasad is rupees, रुपीज जमाना बदल गया, 48640। CGST and SGST is rupees 5320 each. ये each हमें बना है। So with that we complete. नहीं मेरे ख्याल से इनवॉइस बनाना है क्या?